children, how are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is natural resources. Water, air, soil, forest, wildlife and minerals are natural resources. Natural resources are valuable gifts of nature for us. They support life on earth. Plants grow in soil with the help of air, water, sunlight and minerals. Without plants, life is not possible because we get our food from plants. So, all these natural resources are valuable for us. तो बच्चों, पानी, हवा, मिट्टी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल्स हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यदि हम बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी नेचुरल रिसोर्स है बिकॉज उनसे ही हमें हमारा खाना मिलता है. तो हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू करनी चाहिए क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर है जो हमें मिला है. सॉइल. सॉइल इज़ द लूज टॉप लेयर ऑफ अर्थ on which the plant grow. It is formed when rocks break up, plants and animals start decaying. This process takes millions of years by the action of water, wind and sunlight on the surface of the earth. Soil contains tiny particles of gravel, sand, clay, moisture and humus. Humus is made up of rotten leaves and decayed body of animals and plants. Humus is made up of rotten leaves and decayed bodies of animals and plants. Humus is necessary for growth of plants. Soil is found in layers. Nothing on earth can be grown without soil. तो बच्चों, soil अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर है जिस पे प्लांट्स ग्रो करते हैं. वो फॉर्म होती है जब रॉक्स स्मॉलर पीसीज में टूट जाते हैं जिसमें बहुत सारे साल लगते हैं. ये एक्शन पानी की वजह से कंप्लीट हो पाता है एंड प्रॉपर सनलाइट की मदद से. सॉइल में बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि ग्रेवल, सैंड, क्ले, मॉइस्चर एंड हमस. हमस रॉटन लीव्स एंड decayed bodies of animals and plants से बना होता है. ह्यूमन बहुत नेसेसरी है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. सॉइल हमें बहुत सारी लेयर्स में मिलता है एंड हम अर्थ पे कुछ भी सॉइल के बिना ईजीली ग्रो नहीं कर सकते. यदि आप पिक्चर में देखेंगे तो वहाँ पे हमें हमस, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक का एक फिगर गिवन है. ऑल आर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स like wheat, rice, cotton, sugarcane, coffee, tea are grown in different types of soils. There are number of microorganisms like fungi and bacteria living in soil. Ants, beetles, millipedes, scorpions, earthworms, etc. live in soil. Trees and other plants also grow in soil. तो बच्चों, सॉइल हमारे क्रॉप्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उसके अलावा सॉइल में बहुत सारे एंट्स एंड बीटल्स भी रहते हैं. सॉइल ही उनका घर है. तो सॉइल हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. टाइप्स ऑफ सॉइल. टाइप्स ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3: सैंड, सिल्ट एंड क्ले. सैंड इज द लार्जेस्ट पार्टिकल इन द सॉइल. It does not hold much water and nutrients. Silt is very smooth and powdery. Clay is the smallest of particles. Clay is smooth when dry and sticky when wet. तो बच्चों, हमारे पास सॉइल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं सैंड, सिल्ट एंड क्ले के एक कॉम्बिनेशन पर. एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड सैंडी सॉइल हमारे सॉइल के कुछ टाइप्स हैं. टाइप्स ऑफ सॉइल. टाइप्स ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3: sand, silt and clay. Sand is the largest particle in the soil. It does not hold
much water and nutrients. Silt is very smooth and powdery. Clay is the smallest of particles. Clay is smooth when dry and sticky when wet. Clay can hold a lot of nutrients, but it does not let air and water pass through it. There are mainly 4 types of soils: alluvial soil, black soil, red soil, and sandy soil. Soil contains sand, silt, and clay in different proportions. Some kinds of soils have high sand content while some other kind has more clay content. तो बच्चों, अगर हम टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करें तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सॉइल हैं: alluvial, black, red and sandy soil. एंड इनका एक कॉम्बिनेशन होता है सैंड, सिल्ट एंड क्ले का, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल में डिफरेंट प्रपोर्शन में सैंड, सिल्ट एंड क्ले प्रेजेंट होता है. रॉक्स. द अर्थ्स क्रस्ट is made up of rocks. Coal comes from certain rocks. Rocks contain metals such as gold and silver. तो बच्चों, जो रॉक होते हैं उनसे ही अर्थ का क्रस्ट बना होता है. कोल हमें रॉक्स से मिलता है एंड कुछ रॉक्स से हमें मेटल्स मिलते हैं जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर. ग्रेनाइट इज अ हार्ड रॉक यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड बिल्डिंग्स. क्ले इज अ सॉफ्ट रॉक which is used for making bricks and pottery. Glass is also made from rocks. Sand and limestone are melted together while the glass is hot, then it is very soft and can be stretched and shaped into different objects. There are mainly 3 kinds of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. तो बच्चों, ग्रेनाइट एक ऐसा हार्ड रॉक है जिसे बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ किया जाता है. क्ले एक सॉफ्ट रॉक होती है जिसे यूज़ करके ब्रिक्स एंड पॉटरी बनाई जाती है. ग्लास बनाने में भी रॉक का इस्तेमाल किया जाता है. अगर हम बात करें रॉक्स की तो वो हमें 3 टाइप में देखने को मिलते हैं: इग्नियस, सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक. इग्नियस रॉक्स. These rocks are formed by the cooling and solidification of molten rock. When a volcano erupts, molten rock called magma is ejected onto the Earth's surface. Crystallization, a process in which the magma cools and solidifies, forming mineral crystals. They are called igneous rocks. Granite, quartz and basalt are igneous rocks. तो बच्चों, अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो हमें ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज एंड बेसल्ट की फ़ोटो दी हुई है जो हमारे इग्नियस रॉक हैं. इग्नियस रॉक फॉर्म होते हैं कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन रॉक से. जब एक वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें से मोल्टन रॉक मैग्मा निकलता है जिसके कूल डाउन हो जाने के बाद इग्नियस रॉक्स फॉर्म होते हैं. सेडिमेंटरी रॉक्स. सेडिमेंटरी रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्पैक्शन ऑफ sediments. Layers of mud, sand or seashells are built up over a long time. The layers get squeezed and stick together and make new rocks. Sandstone, gypsum and limestone are examples of sedimentary rocks. तो बच्चों, अगर हम sedimentary rocks की बात करें तो वो फॉर्म होते हैं compaction of sedimentation से. इसका ये मतलब है कि मड की बहुत सारी लेयर्स सैंड या सी शेल्स पर बिल्ट हो जाती है एक लॉन्ग टाइम के लिए, फिर वो धीरे धीरे साथ में स्टिक हो जाती हैं एंड उन्हें स्क्वीज आउट करके हमें न्यू रॉक्स मिलते हैं जैसे कि सैंडस्टोन, जिप्सम या फिर लाइमस्टोन. मेटामॉर्फिक रॉक्स. दीज रॉक्स आर चेंज्ड इनटू अ डिफरेंट वन बाय ग्रेट हीट और प्रेशर. When rocks are under heat and pressure for a few million years, they turn into a new kind of rock. Marble forms in this way when soft rocks like limestone get squeezed and heated for a long time. तो बच्चों, अगर हम मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें तो उन्हें हीट एंड प्रेशर से बनाया जाता है. जैसे कि मार्बल फॉर्म होता है जब हम लाइमस्टोन रॉक को स्क्वीज करके
हीट करते हैं एक लंबी ड्यूरेशन के लिए तो हमें मार्बल मिलता है जो कि हमारा मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है। मिनरल्स Minerals are substances that are found naturally under the earth. They occur along with rocks. Rocks contain different types of minerals. Minerals are found in oceans. Digging out minerals from the earth is called mining. Minerals which contain metals are called ores. Iron, copper, zinc, manganese, silver, gold are metals. Deep mining. तो बच्चों अगर हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स एक नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो कि अर्थ के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। उन्हें अंदर से निकालने के प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं। मिनरल्स हमें ओशंस में इजीली मिल जाते हैं। बहुत सारे रॉक्स में भी डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स जिनमें मेटल होते हैं उन्हें हम ओर्स कहते हैं। आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर एंड गोल्ड हमारे कुछ मेटल्स हैं। मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन पार्ट्स, यूटेंसिल्स, पिलर्स एक्सेट्रा। प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। ओर्स कंटेन several impurities. They are mixed, refined and only then metal is extracted. This process of mining and refining ores is called metallurgy. तो बच्चों मेटल्स को यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं जैसे कि यूटेंसिल्स या फिर मशीन पार्ट्स जो कि वैल्यूएबल मेटल्स होते हैं। हमारे गोल्ड एंड सिल्वर उनसे हम ज्वेलरी बनाते हैं। ओर्स बहुत इम्प्योर होते हैं तो उन्हें मिक्स एंड रिफाइन करा जाता है तभी उनमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। Fossil fuels. Millions years ago, plants and animals died and were buried deep under the soil. Fossils are the hardened remains of plants and animals. Fossils of animals and plants from both land and sea have been found. Fossils. Dead remains of plants and animals remained lying on the ground covered with sand, mud or water. Over a long time, minerals seeped into the hard parts and slowly turned them into rocks. Coal, petroleum and natural gas are called fossil fuels. These fuels are available in a limited quantity. Once we use up these fuels, we cannot create any more of them. तो बच्चों पहले जब plants and animals मर जाते थे तो उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता था, उसी से फॉसिल्स बनते थे। फॉसिल्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के हार्डन रिमेन्स। फॉसिल्स हमें लैंड एंड सी दोनों पर ही मिल जाते हैं। डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमें लैंड पे कवर्ड इन सैंड या फिर मड दिखाई दे सकते हैं। इनसे हम मिनरल्स स्वीप करके रॉक में भी इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे हमारे फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और ये हमारे पास बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। अगर ये ख़त्म हो जाएं तो हम इन फ्यूल्स को वापस नहीं बना सकते। कोल इज़ एक्चुअली द फॉसिलाइज्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स. इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग, हीटिंग, generating electricity and running steam engines. Coal gas and coke are produced from coal. Mines of coal in India are in Jharkhand, West Bengal, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Coal mine. बच्चों अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो हमें कोल माइन की पिक्चर दी हुई है। कोल के यूज़ से हम कुकिंग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं एंड हीटिंग के लिए भी उसे यूज़ करते हैं। हमें इंडिया में झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में कोल माइंस देखने को इजीली मिल जाते हैं। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड फाउंड इन अर्थ. पेट्रोलियम इज कॉल्ड मिनरल ऑयल. दिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ बोथ लैंड एंड सी क्रिएचर्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक ऑयल as it is trapped between the rocks deep inside the earth.
Wells are drilled deep into the ground until they hit these rocks. The oil is then pumped to the surface through pipes and taken to refineries to separate various constituents of it. Petroleum refinery. Petrol, diesel, kerosene, LPG, wax, lubricant oil, etc. are derived from petroleum. Petrol and diesel are used as fuel in vehicles. Kerosene and LPG are used as fuel for cooking. LPG is also used as fuel in vehicles. In India, there are petroleum refineries in Mumbai, Chennai, Cochin, Visakhapatnam, Goa and Tuticorin. तो बच्चों, अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो ये एक डार्क ऑयली लिक्विड है जो हमें अर्थ में इजीली मिल जाता है. इसे हम मिनरल ऑयल बोलते हैं और ये फॉर्म होता है रिमेन्स ऑफ लैंड एंड सी क्रिएचर्स से. इसे हम रॉक ऑयल भी बोलते हैं क्योंकि ये रॉक्स के बिटवीन ट्रैप्ड होता है. उन रॉक्स को ग्राउंड से निकाला जाता है एंड उसमें से ऑयल पंप आउट किया जाता है. फिर पेट्रोलियम रिफाइनरी में उसे रिफाइन किया जाता है, तभी वो हमारे यूज़ के लायक बन पाता है. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, वैक्स और लुब्रिकेंट ऑयल सब पेट्रोलियम से ही बन पाते हैं. एलपीजी, डीजल एंड पेट्रोल को हम व्हीकल्स में भी यूज़ करते हैं. इंडिया में अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज हमें मुंबई, चेन्नई या गोवा में इजीली देखने को मिल जाएंगी. नेचुरल गैस. Natural gas is mostly made up of a gas called methane and is lighter than air. It is highly flammable. It is usually found near petroleum reserves. It is pumped from the ground and transported through pipelines to the storage areas. Natural gas is also used as fuel. It is used in the form of liquefied petroleum gas (LPG) and as compressed natural gas (CNG) to run vehicles. तो बच्चों, नेचुरल गैस मीथेन नाम की गैस से एक बनाई जाती है जो कि हवा से भी हल्की होती है. ये बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होती है. इसे ग्राउंड से पंप करके बाहर निकाला जाता है एंड पाइप्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है. अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस को हम एक फ्यूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. एलपीजी एंड सीएनजी को यूज़ करा जाता है व्हीकल्स को रन करने के लिए. फैक्ट टू नो: फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. देयर स्टॉक्स आर लिमिटेड, सो वी शुड नॉट वेस्ट देम. तो बच्चों, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मतलब वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल है. इसीलिए हमें उन्हें वाइजली यूज़ करना चाहिए और उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए. सोलर एनर्जी. The sun is the ultimate source of all types of energy. It can be used repeatedly. We can use solar energy in solar cooker to cook food, solar heater to heat water, solar cells to convert sunlight into electricity. Solar heater. तो बच्चों, जो सन है वो अल्टीमेट टाइप ऑफ एनर्जी का एक सोर्स है. उसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं. हम सोलर एनर्जी सोलर कुकर में यूज़ करके खाना बना सकते हैं, सोलर हीटर से पानी गर्म कर सकते हैं एंड सोलर सेल्स का यूज़ करके सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो वहाँ हमें सोलर हीटर की एक पिक्चर दी हुई है. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे.